Good morning, all of you. In last lecture, we discussed the topic, or we started the topic pharmacological grouping of natural drug. In that, we discussed the what are laxatives, what are purgatives, drastics, and hydrogenous or hydrogogious. Okay. And first drug aloe from the laxative category. Now second drug from laxative category is rhubarb. Okay, synonym for rhubarb is rheum, rhizome ray, and rhubarb rhizome. Okay, these are the three synonyms for the rhubarb. Now next point is biological sources. Okay, rhubarb consists of rhizomes of rheum palmatum lean. Rheum palmatum lean, this is the name of plant where from we collect the rhubarb. Rhubarb consists or obtain in the form of rhizomes, and other species of rhubarb is rheum. Other species of rheum, excepting rhubarb rhaphonticum. Rhubarb rhaphonticum belonging to family Polygonaceae. Okay, the rhubarb is obtained from two species, Rheum palmatum and Rheum rhaphonticum. These are the two species where from we collect the rhubarb, and rhubarb is in the form of rhizomes belonging to family Polygonaceae. Now, Indian rhubarb consists of dried rhizomes of Rheum imodi. Okay, these are two species, but these two are the foreign species. In India, the rhubarb is obtained from or collect from the Rheum imodi. Okay, in India, we obtain the rhubarb from the Rheum imodi. Wall or Rheum viburnum royal. It is collected from the 6 to 8 years old plant just before flowering session and sold with the cortex in partially decorated form. Okay, rhubarb is collected from the plant having the old 6 to 8 years. Okay, the rhubarb plant having the old minimum 6 to 8 years. From this we collect the rhubarb in the form of dry rhizomes and before the flowering season. Okay, just before the flowering seasons means जब rhubarb plant को 6 to 8 ईयर्स के बाद में हम रुबाब को कलेक्ट करते हैं, और जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावरिंग सीजन्स होता है, लाइक अभी उसको फ्लावर आने वाले हैं तो उसके पहले ही हम उसके जो राइजोम्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. रुबाब इज कलेक्टेड एंड कल्टिवेटेड इन चाइना. ओके, रुबाब हमें कहाँ से मिलता है या फिर हम कहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो रुबाब इज कलेक्टेड एंड कल्टिवेटेड इन चाइना, तिबेट, इंडिया, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज. ओके, तो ये जो कंट्रीज हमने देखी, लाइक चाइना में रुबाब ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तिबेट्स में है, देन इंडिया में है, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में रुबाब हम कलेक्ट कर सकते हैं. इंडियन रुबाब इज अ शॉर्ट हर्ब. इंडियन रुबाब इज अ शॉर्ट हर्ब. ओके, छोटा सा प्लांट रहता है रुबाब का, बहुत बड़ा प्लांट नहीं रहता. ठीक है, शॉर्ट हर्ब लाइक प्लांट रहता है इंडिया में. अबाउट 1.5 to 3 मीटर इन हाइट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन कश्मीर एंड सिक्किम. ओके, कितनी हाइट रहती है इसकी, तो मिनिमम 1.5 एंड मैक्सिमम 3 इन हाइट, 3 मीटर इन हाइट. ठीक है, 1.5 मीटर से 3 मीटर तक इसकी हाइट रहती है, और मोस्टली ये कश्मीर एंड सिक्किम में लोकेटेड है. ओके, altitude of the 3,600 to 5,000 meter. It is reported to be cultivated in Assam, but it is collected mainly from the wild plants from the Nepal, Sikkim, Kullu and Kulaman. Okay, इनकी जो अल्टीट्यूड होती है मीन्स सी लेवल से इसकी जो हाइट होती है वो 3,600 मीटर टू 5,000 मीटर तक होती है. मीन्स 3600 से लेकर
5000 मीटर तक इसकी हाइट सी लेवल से हो सकती है, ठीक है। अल्टीट्यूड हम कहाँ से मेजर करते हैं, सी लेवल से मेजर करते हैं, तो अल्टीट्यूड इसकी उतनी हो सकती है। और जो भी प्लांट्स है वो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, तो आसाम में भी ये प्लांट्स आते हैं, लेकिन मोस्टली नेपाल, सिक्किम, कुल्लू एंड कुलामन, ये जो एरिया है वहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं मोस्टली, ठीक है। ये हुआ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की प्लांट्स जो है वो कहाँ ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, कौन से एरिया से हम उसको कलेक्ट करते हैं और इसकी हाइट अल्टीट्यूड कितनी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रुबाब है वो दिखने में कैसा होता है, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली उसको डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें कलर। रुबाब जो है उसका कलर कैसा है, तो रुबाब आर ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ राइजोम्स, राइजोम्स हैविंग द ब्राउन टू येलो कलर, ठीक है। तो जो राइजोम्स है उसका कलर कैसा है, ब्राउन टू येलो। ऑर्डर कैसा है, तो फ्रैग्रेंट, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक फ्रैग्रेंट स्मेल इसको आता है। फ्रैग्रेंट मीन्स फ्लावर लाइक स्मेल, ठीक है। देन नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट इज बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट। टेस्ट कैसा है, तो बिटर है और एस्ट्रिंजेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट साइज, ओके, साइज ऑफ रुबाब राइजोम। द पीसेस ऑफ रुबाब आर 2 to 20 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1.5 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। तो रुबाब जो होता है उसके जो राइजोम्स होते हैं वो 2 से 20 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं और 1.5 मीन्स 1.5 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर के हो सकते हैं। नाउ शेप ऑफ द राइजोम्स, राइजोम्स आर सब सिलेंड्रिकल, ठीक है, बैरल शेप, कोनिकल इन प्लानो कॉन्वेक्स पीसेस, ठीक है। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया है तो इस शेप के वो हो सकते हैं, ठीक है। प्लानो कॉन्वेक्स मीन्स कॉन्वेक्स जो शेप होता है कर्व शेप के हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कर्व, उसको बोला है प्लानो कॉन्वेक्स। एंड बैरल शेप हो सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो शेप ऑफ रुबाब राइजोम्स यहाँ पे दिया है। नाउ नेक्स्ट एक्स्ट्रा फीचर्स, ओके, एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ द रुबाब राइजोम्स। राइजोम्स आर कॉम्पैक्ट एंड फर्म विथ इरेगुलरली लॉन्जिट्यूडिनल व्रिंकल्स, ठीक है। तो इरेगुलरली लॉन्जिट्यूडिनल व्रिंकल्स इस पर हो सकते हैं एंड रिच जो है इसकी वो फ्यूरोज है, ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हाइल सम पीसेस शो द ट्रांसफर व्रिंकल और annulation fractures in granular uneven and show the presence of dark cambium light, ठीक है। तो इसके जो पीसेस होते हैं तो पीसेस पर जैसे हम क्या बोलते हैं, अदरक जो होती है हमारी, क्या बोलते हैं आप उसको, जिंजर, ठीक है। तो जिंजर जैसे इसके राइजोम्स होते हैं, तो जिंजर जब ड्राई होने लगती है तो उस पर कैसे व्रिंकल्स आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही व्रिंकल्स इस राइजोम्स पर आते हैं और वो व्रिंकल्स कभी लॉन्जिट्यूडिनल हो सकते हैं, मीन्स ऐसे सीधे सीधे व्रिंकल्स हो सकते हैं या फिर ऐसे ट्रांसफर व्रिंकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के व्रिंकल्स इस पर आते हैं और जो कैम्बियम लाइन्स जो होती है, मीन्स जो व्रिंकल्स होते हैं वो डार्क होते जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। रुबाब में ऐसे कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसके लिए हम उसको प्रेफर करते हैं यूज करना, ठीक है। तो रुबाब कंटेन्स नंबर ऑफ एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसमें अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में अल्कलॉइड्स है, तो कौन से अल्कलॉइड्स है, तो उसमें एंथ्राक्विनोन अल्कलॉइड्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट आता है द individual components of rhubarb are chrysophenol, aloimodine, rain and physicorn. These occur in free form as well as in the form of glycosides of quinone, एंथ्रोन एंड डायएंथ्रोन, ठीक है। इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है और कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसमें सिस्कॉन, देन aloimodine, then cryptophenol and rain. These 4 chemical constituents are mainly present in the rhubarb
as well as it contains number of anthraquinone derivatives. ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के बहुत से डेरिवेटिव्स इसमें प्रेजेंट थे, लाइक क्विनोन, एंथ्रोन एंड डायएंथ्रोन. These are the derivative of anthraquinone glycosides. Then rhubarb also contains the cinnamic acid, gallic acid, रेन acid and calcium oxalate. Okay, इन 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा उसमें एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, लाइक एंथ्रोन, डायएंथ्रोन एंड क्विनोन, एज वेल एज उसमें सिनेमिक एसिड, गैलिक एसिड, रेन एसिड एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. देन rhubarb yield to alcohol about 40% ऑफ एक्सट्रैक्टिव. ठीक है, मीन्स अगर हम उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो 40% एक्सट्रैक्टिव वैल्यू वो दिखाता है अल्कोहल में. ठीक है. नाउ केमिकल टेस्ट विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द rhubarb. ओके, फर्स्ट वन इज बाय एडिशन ऑफ अमोनिया इट एक्वायर्स पिंक कलर. अगर हम रुबाब का जो भी सॉल्यूशन है या फिर जो भी पाउडर है उसमें अगर अमोनिया ऐड करते हैं तो जो मिक्सचर है उसको पिंक कलर आता है. ठीक है, फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द रुबाब. देन सेकेंड टेस्ट विथ 5% ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्लड रेड कलरेशन इज प्रोड्यूस. अगर हम रुबाब का जो भी सॉल्यूशन है या फिर जो भी पाउडर है उसमें अगर 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, KOH ऐड करते हैं, 5% KOH सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हमें ब्लड रेड कलरेशन मिलता है. ठीक है, ब्लड रेड कलर हमें मिलता है. जैसे हमारे ब्लड का कलर होता है वैसा रेड कलर हमें मिलेगा. तो हम रुबाब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेस्ट. नाउ थर्ड टेस्ट इज अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रूम इमोडी गिव्स ब्राउन कलरेशन. ठीक है, अगर हम यूवी कैबिनेट में इसको ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, कोई भी पाउडर ऑफ द प्लांट ले लिया हमने, रुबाब का पाउडर ले लिया और उसको हमने अल्ट्रावायलेट लाइट में अगर आइडेंटिफाई किया या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे अगर हमने उसको ऑब्जर्व किया तो हमें ब्राउन कलर मिलता है. ठीक है. नाउ फोर्थ एंड लास्ट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द रुबाब इज ब्रॉन्ट-टैगर टेस्ट. ठीक है, ब्रॉन्ट-टैगर टेस्ट इज मेनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. ओके, अगर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए की जाने वाली ब्रॉन्ट-टैगर टेस्ट अगर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि रुबाब इज डायग्नोस्ड फॉर द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजेस. ओके, ये 4 टेस्ट हम कर सकते हैं. हम अमोनिया ऐड करके देख सकते हैं, पिंक कलर आया है तो रुबाब प्रेजेंट है. 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं, अगर ब्लड रेड कलर आया तो रुबाब प्रेजेंट है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के नीचे यूवी कैबिनेट में अगर हम मिक्सचर को ऑब्जर्व करते हैं उसमें ब्राउन कलर दिखाई दिया तो रुबाब प्रेजेंट है या फिर रुबाब ही है. देन नेक्स्ट ब्रॉन्ट-टैगर टेस्ट कर सकते हैं. ब्रॉन्ट-टैगर टेस्ट अगर प्रेजेंट आई तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है वो रुबाब में प्रेजेंट होते हैं. देन नेक्स्ट आता है यूजेस. ओके, रुबाब इज अ माइल्ड परगेटिव. ठीक है, रुबाब इज अ माइल्ड परगेटिव. Its action is like that of cascara. It contains tannins and hence it associated with the astringent effect after purgation. It is also stomachic in smaller doses. ठीक है, फर्स्ट तो इसका फर्स्ट यूज है माइल्ड परगेटिव. ठीक है, परगेटिव एक्शन इसमें है. सेकंड है एक्शन लाइज कैस्कारा. कैस्कारा बार्क का जो भी इफेक्ट होता है वैसे एक्शन ये प्रोड्यूस करता है. इसमें टैनिन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट शो करता है. देन परगेशन, प्यूरिफिकेशन और क्लिनजिंग लाइक इफेक्ट. ठीक है, स्टमक जो है उसको साफ करने के लिए या फिर क्लीन करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. क्लीनिंग इफेक्ट इसमें है, प्यूरिफिकेशन इफेक्ट है और स्टमैचिक है in smaller doses. These are the uses of rhubarb. Okay, now adulterants. Which drugs are used to adulterate the rhubarb? Okay,
रैफोनिक रुबाब obtained from the rum raphonicum is commonly substitute for the rhubarb. ओके, जो भी रुबाब है तो उस रुबाब रैफोनिकम प्लांट से मिलने वाला जो रुबाब है रैफोनिक रुबाब, उसको हम एडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। या फिर चाइनीज रैफोनिका जो है वो भी मार्केट में आता है, चाइना के मार्केट में, वो भी चीप है, तो इसके लिए हम उसको एडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो प्लांट्स हमने देखे जिसका रुबाब हम एडल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर के दोनों भी सब्सटेंसेस है और उसमें अनट्रिम पीसेस हम इसके यूज करते हैं पर्पज ऑफ एडल्ट्रेशन। ठीक है, अगर चाइनीज रुबाब जो है उसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के फ्लोरेसेंस के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो ब्राइट ब्लू कलर हमें दिखाता है। ठीक है, जो नॉट ऑब्जर्व इन केस ऑफ द जेन्युइन ड्रग, अगर हम जेन्युइन ड्रग लेते हैं तो उसमें ब्राउन कलरेशन आता है। अगर हम जो अडल्ट्रेटेड ड्रग है या फिर चाइनीज रुबाब जो है वो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको ब्लू कलरेशन आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्लांट इज, ये देखा हमने रुबाब के बारे में, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, केमिकल टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन से हैं, यूजेस क्या है, एज वेल एज अडल्ट्रेशन क्या, कौन से ड्रग का हम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज कैस्टर ऑयल, नेक्स्ट पॉइंट इज कैस्टर ऑयल। ओके, सिनोनिम फॉर दिस कैस्टर ऑयल इज ओलेयम रिसिनी, ओलेयम ricini. This is the synonym for castor oil. Now biological source, castor oil is a fixed oil. Okay, castor oil नेम में ही है, इंक्लूड उसका ऑयल है, ऑयल फॉर्म में है और फिक्स्ड ऑयल है। ठीक है, वोलेटाइल नहीं होता। देन कोल्ड एक्सप्रेशन ऑन द कर्नेल ऑफ सीड्स ऑफ रिचिनस कम्युनिस, रिचिनस कम्युनिस नाम का जो प्लांट है उसके जो सीड्स होते हैं उस सीड के कर्नेल से, मीन्स जो आउटर कवरिंग होता है वहां से हम इस ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नाउ फैमिली कौन सा है तो एफोरबियासी। ओके, फैमिली कौन सी है कैस्टर ऑयल की, एफोरबियासी। नाउ प्लांट आप देख सकते हो ऐसा ही प्लांट होता है कैस्टर ऑयल का। ठीक है, कैस्टर प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। Castor seeds are produced in almost all tropical and subtropical countries. ठीक है, कैस्टर ऑयल जो है वो हम कैस्टर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और कैस्टर प्लांट जो है उसके जो सीड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में, ट्रॉपिकल कंट्रीज में या फिर सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन इंडिया कैस्टर ऑयल इज वन ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कैस्टर सीड्स इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखें तो इंडिया जो है, इंडिया में जो कैस्टर ऑयल मिलता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लार्जेस्ट अमाउंट में है, इसलिए इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कैस्टर ऑयल। ठीक है, तो दो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है कैस्टर ऑयल प्रोड्यूसिंग में। ठीक है, इट प्रोड्यूसिंग अबाउट 2.8 लाख टन्स पर एनम। ठीक है, एनुअली अगर हम देखें तो 2.8 लाख टन्स ऑफ द कैस्टर ऑयल इज प्रोड्यूस इन द इंडिया। ब्राज़ील, थाईलैंड, यूएसए एंड रोमानिया आर अदर कंट्रीज प्रोड्यूसिंग द ड्रग ऑन द लार्ज स्केल। ठीक है, अदर देन इंडिया। और कौन से ऐसे कंट्रीज है जिसमें कैस्टर ऑयल ऑब्टेन होता है तो थाईलैंड में होता है, ब्राज़ील में होता है, यूएसए में होता है, रोमानिया में होता है। ठीक है, तो दीज आर दी अदर कंट्रीज विच आर आल्सो प्रोड्यूसिंग दी लार्ज अमाउंट ऑफ कैस्टर ऑयल। इन इंडिया इट इज लार्जली ग्रोन इन दी आंध्र प्रदेश। इंडिया में कहाँ आता है तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। इन आंध्र प्रदेश इज प्रोड्यूसिंग दी 60% ऑफ द टोटल क्रॉप ऑफ इंडिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैस्टर सीड्स आर रिच इन फॉस्फोरस कंटेंट एंड मोस्ट ऑफ इट इज थियोफाइटिन।
ओके, कैस्टर सीड्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस होता है एज वेल एज थियाफाइटिन होता है, ठीक है। हल इन रिच इन मिनरल, ओके, जो भी हल होते हैं सीड के उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अल्कलॉइड्स में रेसिनिन, रेसिन, पिगमेंट्स एक्सेट्रा। देन द ऑयल कंटेंट ऑफ द कर्नेल वेरीज फ्रॉम 30 to 60%, ठीक है। जो कर्नेल में प्रेजेंट ऑयल होता है तो वो 30 to 60% वेरी हो सकता है। नाउ ऑलमोस्ट डिफरेंट varieties आर obtained from the Hyderabad, Mughlai, several enzymes including the lipase variety is supposed to be to richest about 40% इन दी ऑयल कंटेंट, ठीक है। तो कैस्टर ऑयल्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, थियोफाइटिन प्रेजेंट होता है, जो नल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज अल्कलॉइड, रिचिसिन, रेजिन्स एंड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कैस्टर ऑयल। देन कैस्टर ऑयल जो है वो अगर अलग अलग एरिया से अगर हमें मिलता है तो वो वेरी होता है, लाइक 36 to 60% वेरिएशन उसमें आ सकता है। ऑलमोस्ट डिफरेंट वैरायटीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द हैदराबाद एंड मुगलाई। देन कैस्टर सीड्स कंटेन द सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग द लाइपेज, माल्टेज एंड इन्वर्टेज। दीज आर द एंजाइम्स लाइक लाइपेज, माल्टेज एंड इन्वर्टेज आल्सो प्रेजेंट इन द कैस्टर ऑयल। द टॉक्सिक प्रिंसिपल resin constituting about 3% of the whole seed is poisonous, okay. Castor oil contains toxic principle like resin about 3% of whole seed and it is poisonous in nature, okay. Then preparation of the castor oil, okay. This is the discussion about the geographical sources in India. The castor oil is obtained in abundant amount, almost the second largest producer of the castor oil. Then the preparation of the castor oil. How to prepare the castor oil? Castor oil can be prepared by two different methods, okay. For the preparation of the castor oil there are two methods. First being a crushing of whole or decorated. Castor oil can be prepared by two different methods. The first being a crushing of whole or decorticated seeds in power driven hydraulic pressure, and second one known as the ghani, which consists of the manually operated screw pressure driven on the blocks. For commercial scale of extraction, the first method is adopted. The oil thus produced in a non-medicinal castor oil. Okay, castor oil producing के टू मेथड्स हैं। फर्स्ट जो मेथड है उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर दिया जाता है, जो भी सीड्स होते हैं कैस्टर ऑयल के उसको हाइड्रोलिक प्रेशर से डेकॉर्टिकेट किया जाता है, ठीक है। उनका जो आउटर सीड होता है, आउटर कवर होता है, उसको निकाला जाता है और उसको हाई प्रेशर के नीचे, हाइड्रोलिक प्रेशर के नीचे दबाया जाता है, ठीक है। उसमें से जो भी ऑयल होता है वो निकल जाता है बाहर। ये फर्स्ट मेथड। एंड जो सेकंड मेथड है उसमें मैन्युअली स्क्रू से उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है। मैन्युअली उसको प्रेस किया जाता है और जो भी ब्लॉक्स होते हैं उसको हम टाइटली प्रेस करते हैं, वैसे ही वो सीड्स जो होते हैं वो उसमें पीसते जाते हैं और वहाँ से हमें ऑयल निकलता है, ठीक है। सिंपल मेथड है ऑयल प्रिपरेशन की, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेथड हमने देखी, तो फर्स्ट मेथड जो है हाइड्रोलिक प्रेशर यूज़ करके हम जो कैस्टर ऑयल निकालते हैं या फिर जो डेकॉर्टिकेटेड करते हैं सीड्स को, तो वो मेथड ज़्यादा अमाउंट में ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कैस्टर ऑयल प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। जो मैनुअल मेथड है उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगर हमें अबंडेंट अमाउंट में कैस्टर ऑयल प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक प्रेशर मेथड यूज़ करेंगे। देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर दी castor oil. First is hydraulic pressure method
and second is manual operated screw method. First of all, the seeds are graded and made free of impurities. पहले तो हम क्या करेंगे, जो सीड्स हैं उसको हम इम्प्योरिटी फ्री करेंगे, ठीक है. देन मेटेलिक पीसेस ऑफ आयरन एंड सैंड. इम्प्योरिटीज लाइक अगर वो जो सीड्स हमने कलेक्ट किए थे उसमें कुछ मेटेलिक पीसेस है या फिर आयरन है या फिर कुछ सैंड है, सॉइल है, तो उसको हम अलग करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे. देन सीड्स आर डिकॉर्टिकेटेड एंड हल आर रिमूव. ओके, उसका जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, तो उसको हम निकाल लेंगे. कॉर्टेक्स है या फिर आउटर कवरिंग जो है सीड्स का, उसको हम निकाल लेंगे. देन डिकॉर्टिकेट करने के बाद में जो भी बीच का मैटर होता है, ठीक है, सॉफ्ट मैटर जो होता है, उसको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. तो उसको हम जो डिज़ायर सीड का जो मैटर है उससे हम ऑयल निकालेंगे, ठीक है. तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें ऑयल्स होते हैं, देन एसिड्स होते हैं और कुछ डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं. तो उसको हम पहले रिमूव कर लेंगे. बाद में जो डिकॉर्टिकेटेड सीड्स है या फिर जो सीड केक्स है उसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर करेंगे, ठीक है. तो हम प्रेशर कितना यूज़ करेंगे, तो 2 टन्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है. 1 इंच दबाने के लिए हम 2 टन्स पर स्क्वायर प्रेशर यूज करेंगे. देन हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग द 30% ऑफ द ऑयल प्रेजेंट इन द सीड्स. ओके, ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है इसमें ये अगर हम यूज करते हैं तो अबाउट 30% ऑफ द ऑयल जो है वो निकल जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है. इसको टेम्परेचर बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है और टेम्परेचर कम करने की भी ज़रूरत नहीं है. जो भी रूम टेम्परेचर है वहाँ पे 30% सीड ऑयल जो है वो निकल जाता है. दी ऑयल इज नोन एज अ कोल्ड ड्रॉन ऑयल, ठीक है. रूम टेम्परेचर पे हमने उसको निकाला है इसलिए हम उसको कोल्ड ड्रॉन ऑयल बोलते हैं. रेस्ट ऑफ द ऑयल फ्रॉम द सीड इज रिमूव बाय फर्दर इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड समटाइम्स बाय हॉट प्रेसिंग इवन बाय द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है. 30% ऑयल तो वैसे ही निकल गया हाइड्रोलिक प्रेशर से. अगर और जो बचा हुआ ऑयल है उसको निकालने के लिए हम प्रेशर 2 टन्स पर स्क्वायर से ज़्यादा इंक्रीज करेंगे या फिर उसको हम हॉट प्रेशर करेंगे, ठीक है. हॉट प्रेशर करने से भी ऑयल जो है वो उस सीड्स में से निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, या फिर हम उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं. देन द ऑयल थस प्रोसीड. It is not suitable for medicinal purpose. The cold drawn oil is then steam at 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. जो भी ऑयल हमने निकाला वो क्रूड फॉर्म में है इसलिए हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते फॉर द मेडिसिनल पर्पस. तो हम क्या करेंगे, जो भी ऑयल हमने निकाला है उसको हम स्टीम करेंगे, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे. देन जो भी एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट है लाइक लाइपेज, देन रिस्निन, जो भी टॉक्सिक प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आफ्टर स्टीम. देन ब्लीच एंड डिसिफाइड विथ सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव द फैटी एसिड्स. उसमें से जो भी फैटी एसिड्स है उसको हम रिमूव करेंगे बाय यूजिंग द सोडियम कार्बोनेट. देन ऑयल इज वॉश विद द हॉट वाटर बिफोर स्टीमिंग, ठीक है. स्टीम करने से पहले हम उसको फिर से वॉश करेंगे हॉट वाटर से. देन रिमूव द म्यूसिलेजिनियस मैटर. जो भी म्यूसिलेजिनियस मैटर है या फिर जो भी ऑयल में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज है, म्यूसिलेजिनियस इम्प्योरिटीज, उसको हम निकालेंगे बाय वॉशिंग और स्टीमिंग. देन फाइनली इट इज ट्रीटेड विद द एक्टिवेटेड अर्थ और एनिमल चारकोल टू रिमूव द फाइनल इम्प्योरिटीज. हम उसको एनिमल चारकोल से ट्रीट करेंगे टू रिमूव अदर इम्प्योरिटीज एंड एडसॉर्प्शन. देन प्यूरिफाइड ऑयल इज कलेक्टेड इनटू द कंटेनर, ठीक है. क्या किया हमने, पहले तो जो सीड्स लिए थे उसका जो छिलके है या फिर उसके जो भी आउटर कवरिंग है उसको निकाल दिया. जो केक था उसको हमने हाइड्रोलिक प्रेशर दिया 2 टन्स पर स्क्वायर इंच में प्रेशर देके उसको वो जो सीड्स का केक है उसको दबाया हमने. फिर उसमें से 30% ऑयल तो निकल गया. जो
रिमेनिंग ऑयल था उसको हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से या फिर और प्रेशर इंक्रीज करके निकाला। जो ऑयल कलेक्ट हुआ था वैसे तो उसको तो हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो क्रूड फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हम वो जो ऑयल है उसको हॉट वाटर से वॉश कर लेंगे, ठीक है। देन बाद में उसको हम स्टीम करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर। स्टीम करने से उसमें से जो भी एंजाइम्स है जो पॉइजनस है वो निकल जाते हैं, ठीक है, लाइक लाइपेज एंड रिसिन, ठीक है। दिस आर द टॉक्सिक प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स विच आर रिमूव्ड बाय यूजिंग दिस स्टीम। देन उसको हम ब्लीच करेंगे सोडियम कार्बोनेट से। ब्लीच करने के बाद जो भी फैटी एसिड्स है या फिर जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो निकल जाती है। अगर हमें लगता है तो हम फिर से हम उसको वॉश कर सकते हैं, वॉश करेंगे और स्टीम देंगे तो उसमें से जो भी म्यूसिलेज है वो निकल जाता है, वो इम्प्यूरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। देन हम उसको चारकोल से वॉश करेंगे या फिर उसमें चारकोल ऐड करेंगे, जो भी अदर इम्प्यूरिटीज़ वो प्रेजेंट है वो निकल जाएगी, ठीक है। नाउ उसको हम फिलअप करेंगे कंटेनर में। अभी वो प्यूरिफाइड ऑयल है, ठीक है। नाउ ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, जो भी ऑयल है वो दिखने में कैसा होगा या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, ठीक है। तो उसका कलर होगा पेल येलो और ऑलमोस्ट कलरलेस लिक्विड। पेल येलो हो सकता है या फिर कलरलेस लिक्विड हो सकता है, ठीक है। देन नॉजिएटिंग, उसका स्मेल कैसा होगा, तो वोमिटिंग जैसा हमें फील हो सकता है, नॉजिएटिंग ऑर्डर होगा। देन टेस्ट, फर्स्ट इट इज ब्लेंड बट आफ्टरवर्ड स्लाइटली एक्रिड, ठीक है, एक्रिडेबल टेस्ट होगी, नॉजिएटिंग टेस्ट होगी, ठीक है। एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड, विस्कस एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा। नाउ सोल्युबिलिटी, ठीक है, तो इट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक है, इट इज सोल्यूबल इन अल्कोहल। इसमें एक्सेप्शन है, अगर उसमें कुछ फिक्स ऑयल्स जो होते हैं वो एक्सेप्शन टू बी द कैटेगरी ऑफ फिक्स ऑयल्स, ठीक है। फिक्स ऑयल्स जो होते हैं वो अल्कोहल में सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन ये जो ऑयल है वो एक्सेप्शन है, अल्कोहल सोल्यूबल है। नाउ मिसिबल इन क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट, ईथर, ग्लासियल एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर। अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट, ईथर, ग्लासियल एसिटिक एसिड एंड पेट्रोलियम ईथर, these are the solvents in which the castor oil is soluble. Now standards, वेट पर ml, अगर 1 ml हम कैस्टर ऑयल लेते हैं तो उसमें 0.945 टू 0.965 ml कैस्टर ऑयल होना चाहिए। देन एसिड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो नॉट मोर देन 2। एसिटिल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो नॉट मोर देन 143। आयोडीन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 82 टू 90। सेपोनिन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 177 टू 185। ऑप्टिकल रोटेशंस कितने होने चाहिए, तो नॉट लेस देन प्लस 3.5 डिग्री। ओके, नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है। कैस्टर ऑयल इज चीपली कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। कैस्टर ऑयल में क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, रिसिनोलिक एसिड है, देन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, फैटी एसिड्स है, आइसोरिसिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, आइसोस्टेरिक एसिड है, ठीक है। These are the और रिसिनोलिक एसिड, these are the chemical constituents which are present in the castor oil. Now identification of the castor oil, okay, तो mixed with the half its volume of light petroleum ether, ठीक है। जो भी कैस्टर ऑयल है उसमें अगर हम हाफ वॉल्यूम में, अगर हमने 1 ml कैस्टर ऑयल लिया तो उसमें हाफ ml हम लाइट पेट्रोलियम ईथर अगर ऐड करते हैं तो हमें वो 2 वॉल्यूम्स में सोल्यूबल होगा, ठीक है, मीन्स वो सोल्यूबल हो जाएगा, तो वो कैस्टर ऑयल है। देन ऐड ऑयल एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, जितना ऑयल है उतना ही अगर हम उसमें अल्कोहल ऐड करते हैं तो क्लियर लिक्विड हमें मिलेगा। आफ्टर कूलिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज फॉर 3 आवर्स लिक्विड रिमेन्स क्लियर, ठीक है। हम 3-4 घंटे तक उसको फ्रिज में भी रख देते हैं तब भी वो अगर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, क्लियर लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो वो क्या है, तो वो कैस्टर ऑयल है। नाउ यूजेस, ठीक है, तो कैस्टर ऑयल का फर्स्ट यूज है लैक्सेट यूज या फिर कैथार्टिक। देन लुब्रिकेशन पर्पस के लिए भी हम कैस्टर ऑयल को यूज करते हैं। देन इंडस्ट्री में भी हम सेवरल पर्पस के लिए उसको यूज़ करते हैं। देन जो फैटी एसिड्स होते हैं, रिनोलिक एसिड होते हैं या फिर हेपेटोअल्डिहाइड्स होते हैं,
वो उनको भी हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। देन तुर्की रेड ऑयल जो होते हैं उसको हम सोप्स में यूज़ करते हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। और कैस्टर ऑयल जो है उसके कुछ प्रिपरेशंस में भी उसको ऐड किया जाता है अदर इंडस्ट्रीज में, लाइक पेंट, एनेमल, वार्निशेस, ग्रीस, पॉलिश, प्रिंटिंग इंक, हाइड्रोलिक एंड ब्रेक स्पिरिट एक्सेट्रा। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल जो है उसका मेन यूज़ है लैक्सेटिव एंड लुब्रिकेंट, एज वेल एज अदर इंडस्ट्री में भी कैस्टर ऑयल यूज़ किया जाता है। ठीक है, दीज आर दी यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल। लिपस्टिक्स में भी, परफ्यूम्स में भी कैस्टर ऑयल्स यूज़ किया जाता है। हेयर स्प्रे जो होते हैं, हेयर ऑयल्स जो होते हैं उसमें भी कैस्टर ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। कैस्टर ऑयल के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, जेलीज या फिर क्रीम्स जो होते हैं उसमें भी कैस्टर ऑयल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। दीज आर दी यूजेस ऑफ कैस्टर ऑयल। नाउ नेक्स्ट ड्रग हम देखेंगे इसाबगोला। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।